This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is Akashvani. We now bring to you the recording of today's proceedings during the question hour in the Rajya Sabha. ये आकाशवाणी है. अभी आप आज राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे. क्वेश्चन आवर. क्वेश्चन नंबर 46 श्री सैयद नासिर हुसैन. क्या विदेश मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2020 से अब तक केंद्रीय मंत्रियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं का मंत्रालयवार ब्यौरा क्या है? उक्त यात्राओं के उद्देश्यों, यात्रा के द्वारा हुई चर्चाओं और उनके परिणामों का ब्यौरा क्या है? और क्या ऐसी यात्राओं के दौरान किन्हीं द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर. केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर. डॉक्टर जॉन ब्रिटास. Sir, my mic here. Even while appreciating the engagements of Honorable External Affairs Minister and other ministers, I have a question which is concerning the interest of India. There has been numerous reports in the media that an Indian official has been implicated by the US authorities on account of an alleged attempt to kill a US citizen, and it has been widely reported that Indian government is applying its mind and seeing the inputs of the US government the basis for an inquiry. On the other count, there has been reports about India rebutting the stand of the Canadian government. Is it a fact that we are not having a equitable treatment, and what is the status of the charges and allegations raised by the US authority? Thank you, sir. Honorable Minister. Sir, the matter is not directly connected to the question, which is on the visits of union ministers. But nevertheless, since it has been asked, sir, through you, I would like to clarify to the honorable member that insofar as the US is concerned, certain inputs were given to us as part of our security cooperation with the United States. Those inputs were of concern to us because they related to the nexus of organized crime, trafficking, and other matters. So, because it has a bearing on our own national security, it was decided to institute an inquiry into the matter, and an inquiry committee has been constituted. Insofar as Canada is concerned, no specific evidence or inputs were provided to us. So the question of equitable treatment to two countries who have, one of whom has provided inputs and one of whom has not, does not arise. Shri Sujit Kumar. Sir, between January 2020 and November 23, 220 foreign visits have been made by various union ministers. And these visits have substantially helped India standing in the globe. But sir, out of these 220 visits, only 6 visits have been made to Latin American countries. Brazil in May 22, and then Panama, Colombia, Guyana, and Dominican Republic in April 23, and then Uruguay, Brazil in June 23. So why, sir, this important part of the globe is being neglected, particularly when China is making such deep inroads in Latin America? And I think we have much affinity and similarities between Latin America and India. So I think the Honourable Minister, I would like to hear from him what needs to be done to enhance this. Honorable Minister. Sir, I thank the Honourable Minister through you for the interest he has taken on Latin America. I would like to say that the visits he referred to are actually visits I have myself undertaken. In many cases, not the first ever visit by any foreign minister to Colombia, to Guyana, to the Dominican Republic and to Panama. I would like to assure the honourable member, sir, that government actually is very committed to developing our ties.
One of the reasons why there have not been that many visits is obviously a matter of distance. But having said that, today our trade with Latin America is nearing $50 billion. We have a very significant flow of people there. There is a lot of services trade which is taking place in Latin America. We have also designated special conclaves for which Latin American delegations come here. So I would certainly be confident that we will see many more visits to Latin America, not just by me, but by my other ministerial colleagues as well. Other ministers and constitutional functionaries. Certainly, sir. There was slight murmur because you addressed the honorable member as minister. Oh. But you are known to turn out prophetic. Shri Saket Gokhale. Thank you so much, sir, for the opportunity. On this question of foreign visits by union ministers, there is one question I would like to ask of the Honorable Minister through you, which is, on their foreign visits from 2020 till date, have any union ministers during their foreign visit attended events organized or meetings held by an organization called the Overseas Friends of the BJP, which is a unit of supporters of the Bharatiya Janata Party in different countries? So have any ministers attended events of the Overseas Friends of BJP? And if yes, on what grounds did they attend this event on an official foreign visit? Thank you, sir. Honorable Minister. I am very confident that many ministers would have attended such functions. I have myself done so. And the reason why we have done so is when we go abroad, we meet members of the Indian community. It is part of our tradition. The Modi government values the Indian diaspora. We know that they make an enormous contribution to the image and to the profile that India has today. We treat all members of the community with respect, and if members of the community happen to belong to political parties or have political affiliations, that is a fact of life. But the primary purpose for which ministers go is official business. Ministers discharge their official responsibility fully, satisfactorily, and it is visible in the results of the foreign policy. Shri Rakesh Sinha. सभापति महोदय धन्यवाद। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्रियों का दुनिया के अनेक देशों में जो लगातार दौरा हो रहा है, उसमें खास करके ऐसे छोटे देश जो अब तक उपेक्षित थे, जैसे मंगोलिया हो गया, वियतनाम हो गया, जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दौरा किया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन दौरों से जो सांस्कृतिक संबंध को बढ़ाने के लिए खास करके वियतनाम और मंगोलिया में क्या प्रयास किया जा रहा है? Honorable Minister. Sir, during the visits which have been undertaken by the Prime Minister and by members of Cabinet, just as I said, the Indian community is an important pillar of the relationship. Building our cultural and civilizational linkages with these countries is also very important. What the Honourable Member specifically referred to, sir, Mongolia and Vietnam, I would like to inform the House through you that where Mongolia is concerned, we have actually undertaken a very extensive project of digitizing manuscripts and providing support to one of the leading monasteries. Where Vietnam is concerned, there is actually a very significant archaeological site going back to the Champa period. So this is a era about which, as you know, Jaishankar Prasad has written as well. So in the Champa period, there is a site called Mison, there are ancient Shaivite temples there, and we are very proud that the Archaeological Survey of India has contributed to the renovation and the restoration of heritage at the Mison temple complex, and this is greatly valued because it has now become a very major tourist site. There are many other countries, sir, where cultural and civilizational connects are built through our cooperation. Shri M. Thambidurai. Chairman, sir,
Through you, I want to know from the Honourable Minister, because so many visits took place to Sri Lanka, then what is the efforts taken by our side to solve the Tamil Nadu fishermen? Often Sri Lankan Navy is arresting and harassing them. And also, to protect the Sri Lankan Tamils, the constitutional amendment is still pending. Whether the government, the Indian government, our people were visited to take care of that, solve this problem. I want to know through you, sir. Honorable Minister. Sir, the House would be aware that a lot of the fishermen's issues arise from agreements and understandings which were reached in the 1970s. Insofar as the constitutional issue is concerned, the rights of the Tamil-speaking people in Sri Lanka, this was a matter of an agreement which we had between the two countries in 1987. Our endeavor today is to see that our fishermen are allowed to fish, do their occupation in the areas of our jurisdiction in a peaceful manner. And wherever there are any frictions, to resolve that friction, because often, sir, boats are seized and fishermen are detained. So we make sure that these detentions are not long, and if there is any misunderstanding, to solve it. Insofar as the constitutional issue is concerned, sir, we have been continuously supportive of the implementation of the 13th Amendment of the Constitution and efforts by the Sri Lankan government to ensure that their own Tamil-speaking citizens live a life of dignity and of fairness. I'll be open to a discussion about role of Indian diaspora if there would be a suggestion. We'll structure it. Question number 47, Shri Sandeep Kumar Pathak. प्रश्न संख्या 47। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र को जारी की गई धनराशि और उनके द्वारा व्यय की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है? विगत 3 वर्षों के दौरान दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के संबंध में पर्यावरण मंत्री द्वारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और अन्य संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों के साथ बुलाई गई बैठकों की सूची का ब्यौरा क्या है? प्रत्येक बैठक में उपस्थित लोगों की सूची और प्रत्येक बैठक के दौरान लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है? और पिछले 3 वर्षों के दौरान दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री संदीप कुमार पाठक। It will function. Both the honorable minister and the member are techno-savvy. Thank you. They know sometimes situations. Thank you, sir. Go ahead. सर जैसा आप देखते हैं कि जब भी पॉल्यूशन की बात आती है, पराली जलाने की बात आती है और किसानों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, मेरा ये मानना है कि देश में कोई भी किसान पराली खुद से नहीं जलाना चाहता है। जब वो पराली जलाता है तो सबसे पहले नुकसान तो उसको स्वयं को और उसको परिवार को होता है। तो इस इशू को एड्रेस करने की जिम्मेदारी सभी सरकारों की होती है। मेरा प्रश्न ये है सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, कि पराली को ना जलाने के लिए जो कॉम्पनसेशन देनी बहुत जरूरी है, यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप रोक सकते हैं। पंजाब सरकार ने ये ऑफर दिया है कि प्रति एकड़ पराली न जलाने के लिए 1000 रुपए कॉम्पनसेशन पंजाब सरकार की तरफ से, और केंद्र सरकार से मांगा है कि 1500 रुपए अगर केंद्र सरकार भी उस पर ऐड ऑन कर दे तो ये पर्याप्त राशि होगी और ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। तो क्या केंद्र सरकार इसके लिए रेडी है और उनका इस पे क्या प्रयास है? ये मेरा पहला प्रश्न। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, पराली को जलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को विशेष अनुदान दिया गया है। इस विशेष अनुदान के अंतर्गत पराली को रोटिवेटर से लगाने के लिए मशीनें दी गई, पराली को रोकने के लिए अन्य कमर्शियल उपाय दिए गए।
मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी पराली को जलाने में गिरावट हरियाणा और बाकी राज्यों में आई, उतनी संतोषजनक प्रगति पंजाब राज्य में नहीं आई। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के दिए गए संसाधनों का जो पूरी तरीके से उपयोग करना था, अगर वो होता तो हम पंजाब में भी उतनी ही गिरावट देखते जितनी बाकी राज्यों में देखी है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री संदीप कुमार पाठक। Thank you, sir. So, although the first answer is not satisfactory, but I would move on to my next question. Sir, पराली को जलाने से रोकने के लिए अगर लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल आंसर खोजना है तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत फंडामेंटल और क्रिटिकल पैरामीटर है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि एक तो एमएसपी है, क्या किसान को पर्याप्त एमएसपी मिलती है, और अगर उस फसल पर एमएसपी मिलती है तो पैडी जो धान है उसके एमएसपी में कितना डिफरेंस है। पंजाब सरकार ने ये ऑफर दिया है केंद्र सरकार को कि जो एमएसपी में डिफरेंस है धान में और बाकी के फसलों में वो अपने पंजाब सरकार की तरफ से कॉम्पेंसेट करेंगे और एमएसपी देंगे। केंद्र सरकार क्या इसके लिए तैयार है और इसी सेशन से क्या केंद्र सरकार इसको लागू करने के लिए तैयार है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार के द्वारा 2018 से ही स्कीम लागू की गई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में लगभग 2440 करोड़ रुपए का जो फंड है वो रिलीज किया गया है। उसके साथ ही साथ सीपीसीबी ने एक नई फाइनेंशियल स्कीम को भी लागू किया, जिसमें वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया, जिसमें पैडी का पिलेट बना करके उसके कमर्शियल उपयोग को मान्यता दी गई। उसके अतिरिक्त भी सीपीसीबी के द्वारा अन्य फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके संबंध में दी गई। फिर इसको और आगे बढ़ाने के लिए इसका जो थर्मल पावर में भी उपयोग करने के लिए, पिलेट्स बनाने के लिए उपयोग किया गया। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा सहायता दी गई है उसमें पिछले 2 वर्षों की तुलना में हम काफ़ी पराली को जलाने में गिरावट को देख रहे हैं। मुझे लगता है इन सारे प्रयासों को अगर अच्छे तरीके से लागू किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पंजाब में भी विशेष रूप से ये दुर्भाग्य का विषय रहा कि सबसे ज़्यादा जलाने की घटनाएं संगरूर में हुई, जो स्वयं मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री जयराम रमेश। Sir, air pollution is now a serious problem across the country, not just in and around Delhi. I'd like to ask the Honourable Minister, the law for preventing and control of air pollution was passed in 1981. The National Ambient Air Quality Standards were set in 2009. I would like to ask the Honourable Minister, in view of the accumulating evidence on public health of air pollution, whether he will consider reviewing both the law passed in 81 and the ambient air quality standards that were set in 2009. Honorable Minister. देश में जो वायु का जो प्रदूषण है उसकी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 19,711 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और जो मानक तय किए थे उन मानकों को डिफाइन करने के लिए देश में 131 शहरों को चिन्हित भी किया गया। इन शहरों को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्कीम लगाई गई। विशेष रूप से PM 2.5, PM 10 में जो हवा में विषैली जो विकिरण फैलते हैं उसको देखते हुए भी सारे प्रावधानों को किया गया। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 131 शहरों में जो मानक बनाए गए थे उसमें काफ़ी संतोषजनक रूप से प्रगति की गई। बल्कि मैं माननीय जयराम रमेश जी को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन 131 शहरों में जिन म्यूनिसिपैलिटीज़ ने अच्छा काम किया, कंट्रीब्यूशन किया, उनको भी पॉजिटिव तरीके से अवार्ड देने का काम किया, क्योंकि ये विषय हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ विषय और इसमें विशेष रूप से जो स्थानीय नगर पालिका है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सहभाग करे और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको विशेष कंपनसेशन भी दिया गया। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्री तिरुचि शिवा। Thank you, Chairman, sir. Sir, one of the main reasons for air pollution is plastic, sir. And, of course, many serious efforts have been taken up. The torrential rain that poured in Chennai for the past 4 days, which is unprecedented, has stopped. But receding is very, very slow only because of the major reason 25% is by way of the plastic waste that has been subbing here and there.
And whenever we visit some hotels for a meeting, we see only they supply water in plastic bottles. Only in some hotels it's being supplied in glass bottles, and so also in festivals like marriage and receptions. So I would request the Honorable Minister, would you consider of giving strict guidelines that only glass bottles or only recyclable bottles could be given in various places for supplying water, and non-recyclable plastic bottles should be banned. And it's very, very essential, sir, because wildlife, many animals also die only because of consuming plastic. So that has to be seriously considered, and would the Minister consider it and give a suggestion? Thank you very much. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का सही सुझाव है। सिंगल यूज प्लास्टिक को हमारे देश के अंतर्गत हमने पूरी तरीके से बैन किया है और इसको लागू करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों को दी गई है। उसके साथ ही साथ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें भी कई बार जो प्लास्टिक वगैरह जो जलता है उसके कारण भी एयर पोल्यूशन होता है। हमने पर्याप्त गाइडलाइन इसमें इशू करी है और हम राज्य सरकारों से और स्थानीय प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है उसको पूरी तरीके से लागू करें और जनप्रतिनिधियों से भी अपेक्षा है कि इसमें अपनी जनभागीदारी को भी बढ़ाएं। श्री मुकुल वासनिक। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय ने बड़े विस्तार से जवाब दिया है कि सरकार वो कौन से कदम उठा रही है जिससे वातावरण में प्रदूषण कम होगा। अब दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन हाल ही में हम सब जानते हैं कि यहाँ पर कुछ समय के लिए कुछ कार्यालयों को बंद करना पड़ा और एक लंबे समय तक के स्कूल्स को यहाँ दिल्ली में छुट्टी देनी पड़ी, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण इस हद तक के बढ़ गया था कि सामान्य जन बाहर में दिल्ली के वातावरण में नहीं चल सकते थे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ऐसे कौन से कदम उठाएंगी ताकि आने वाले समय में दिल्ली के कार्यालय, दिल्ली की स्कूल्स वातावरण के प्रदूषण की वजह से बंद नहीं करने पड़ेंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो फैलने का कारण है उसका एक बड़ा ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डस्ट, ये जो चारों विषयों से पॉल्यूशन होता है और उसके साथ जो स्टबल बर्निंग है उसके कारण भी ये कॉज बनता है। हमने ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल है उसको हमने चेंज किया है। जो डस्ट पॉल्यूशन है उसके लिए हमने पर्याप्त गाइडलाइन निकाली है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के लिए भी हम जो है गैस आधारित इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से एनसीआर में हमने प्रावधान किए हैं और मैंने अपने पूर्व के उत्तर में स्टबल बर्निंग के लिए जो केंद्र सरकार ने राशि एनसीआर के क्षेत्र में आवंटित करी है उसका उल्लेख किया है। इन सारे प्रावधानों को उत्तर में भी विस्तार से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 48 श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि। प्रश्न संख्या 48, क्या पर्यटन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन और समर्थन दिया जा रहा है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार द्वारा भारत की पर्यटन अर्थव्यवस्था का आकलन किया गया है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और आने वाले वर्षों में भारत में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है एवं मंत्रालय द्वारा राज्यों को उनके पर्यटन स्थलों, होटलों आदि को विकसित करने हेतु क्या सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटक पर रखें। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या बढ़ते पर्यटकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा दिए जाने हेतु कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि युवाओं को
पर्यटन के रोजगारों से जोड़ा जा सके? ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय चेयरमैन साहब, आज भारत में टूरिज्म दृष्टिकोण से भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट से मिलके अलग अलग कदम उठा रहे। अभी महिलाओं के लिए जो क्वेश्चन में पूछे हैं उसमें रूरल होम स्टेज के लिए स्टेट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलकर अलग अलग प्रांतों में, स्पेशली बॉर्डर स्टेट्स में और अलग अलग स्टेटों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व करते हुए होम स्टेट्स बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। आपको मालूम है, मैं इस सभा को बताते हुए खुशी होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी तय किया है एक एक सेल्फ ग्रुप को मैक्सिमम जो डिफॉल्टर रहते हैं उसको 20 लाख रुपीस देने के लिए हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ने निर्णय किया। बैंक से पहला 5 लाख थे, 10 लाख, अभी 20 लाख एकदम बढ़ा दिया गया। उसके कारण से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम मोटिवेट कर रहे होम स्टेस बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ जो भारत सरकार के द्वारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के द्वारा हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा हम फीमेल टूर गाइड्स को भी ट्रेनिंग दे रहे। उसमें जो फीस वसूल करते हैं महिलाओं के लिए 50% डिस्काउंट देते हुए प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आदेश पर हम सभी जगह हजारों महिलाओं को इस जो टूरिस्ट गाइड्स के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं इस सदन को, अभी प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी के विजन पर हम हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हाई स्कूल से लेके पीजी तक सभी इंस्टीट्यूशन में युवा टूरिज्म क्लब्स खोलने का निर्णय किया है। अभी तक 35,000 युवा टूरिज्म क्लब्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में भारत सरकार खोले हैं। क्योंकि आपको मालूम है, घर में अगर कोई समर में, हॉलिडे में टूरिज्म जाना चाहते तो कौन तय करते हैं? घर में रहने वाले स्टूडेंट्स, बच्चे तय करते हैं। इसलिए भारत सरकार चाहते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ाने में उस बच्चों को आधार पर उसके घर में, उसके परिवार में, उसके इंस्टीट्यूशंस में जो उनको अवेयरनेस लाने के लिए युवा टूरिज्म क्लब्स खोल रहे। अभी तक 35,000 युवा टूरिज्म क्लब खोलकर आज टूरिज्म बढ़ाने के लिए प्रयास करें। हम चाहते हैं, भारत सरकार चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से लगातार संपर्क करें। सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक युवा टूरिज्म क्लब जरूर होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भी हम काम कर रहे हैं। सेकेंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने में क्या क्या कदम उठाए हैं? माननीय मंत्री। रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर, अभी नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद आज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में जब तक टूरिज्म आना चाहते हैं, एयरपोर्ट्स नहीं थे, पहले एयरपोर्ट्स कम थे, रेलवे स्टेशन एक ही असम गुवाहाटी में था। अभी सभी कैपिटल में एक ट्रेन कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया है। जब तक कनेक्टिविटी नहीं रहते हैं टूरिज्म बढ़ते नहीं। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार लगातार नॉर्थ ईस्ट में इस 9 साल में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ाया। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी नहीं बढ़ते हैं, जब तक टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ते नहीं। अभी हम जो नॉर्थ ईस्ट में जो नेशनल हाईवेज रहते हैं उसमें हम जो व्यू पॉइंट्स बोलकर अलग अलग जगह व्यू पॉइंट्स लगा रहे, क्योंकि बहुत डिस्टेंस जर्नी करना पड़ता है। टूरिज्म जाते हैं, महिला रहते हैं, बच्चे रहते हैं, कोई वॉशरूम भी नहीं रहते। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग जगह व्यू पॉइंट्स लगा रहे। अभी तक अरुणाचल प्रदेश में एक पायलट प्रोजेक्ट के नाते फर्स्ट फेज में अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में, सिक्किम में अलग अलग जगह नेशनल हाईवेज के बाजू अच्छे व्यू पॉइंट्स आजकल उधर ठहर सकते हैं। कैंटीन, रेस्टोरेंट, उसके साथ साथ कोई सावनीर सेंटर, उसके बाद अच्छे फोटोज सेल्फी निकालने के लिए अच्छी व्यू पर एक व्यू पॉइंट्स बनाने के लिए अच्छे व्यवस्था करें। और उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर
अलग अलग जगह जो जितने भी टूरिज्म डेस्टिनेशंस है हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे, प्रसाद स्कीम के द्वारा, स्वदेशी दर्शन के स्कीम के द्वारा, पिलग्रिम टूरिज्म हो, नेचुरल टूरिज्म हो, ऐसे अलग अलग जगह टूरिज्म बढ़ाने के लिए भी नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार का प्रथम रेस्पॉन्सिबिलिटी है और प्राथमिकता देकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अमर पटनायक। Thank you, Chairman, sir. Sir, recently, the Orissa government handed over 20 wayside amenity centers and 12 cafeterias at prominent tourist destinations to self-help groups under the Mission Shakti program of the state government of our Chief Minister, Honorable Sri Naveen Patnaik. Whether the central government would consider having similar kind of scheme which would not only promote tourism but would also give impetus to the self-help groups in the country. Honorable Minister. अध्यक्ष जी, टूरिज्म तो जो भारत सरकार को कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सभी डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को 100% हम प्रसाद स्कीम के द्वारा, स्वदेशी दर्शन के स्कीम के द्वारा हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अभी बताया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी हम उनके द्वारा भी एंकरेजमेंट करने के लिए प्रयास करें। जो भी स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को आते हैं, स्वदेशी दर्शन हो, प्रसाद स्कीम हो, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर प्रायोरिटी भी स्टेट गवर्नमेंट तय करते हैं। हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं 100%। उसका एग्जीक्यूशन हो, मेंटेनेंस हो, टेंडर हो, वो सब स्टेट गवर्नमेंट ही करते हैं। जैसा स्टेट गवर्नमेंट से जो भी प्रपोजल आएगा जरूर हम करेंगे। Fourth supplementary, Sri Sukhendu Sekhar Ray. Thank you, sir. Sir, the Sagar Island, situated in the South 24 district of West Bengal, popularly known as Ganga Sagar, is not only having a beautiful sea beach and coastal area, but also one of the most popular place of pilgrimage in the country from time immemorial. My supplementary to 48C, whether the Honorable Minister will be pleased to consider inclusion of Ganga Sagar under the Darshan or Prasad scheme for development of the place as spiritual circuit or coastal circuit. Honorable Minister. आदरणीय चेयरमैन सर, भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी संभालने के बाद जो पिलग्रिमेज टूरिज्म हो, रिलीजियस टूरिज्म हो, जो कल्चर टूरिज्म हो, इसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया है। एग्जाम्पल आप वाराणसी देख सकते हैं, उज्जैनी देख सकते हैं, केदारनाथ साइड देख सकते हैं, वैसे ही साउथ में भी अलग अलग जगह श्रीशैलम में देख सकते हैं। सभी जगह प्रशासन के स्कीम के द्वारा उस अलग अलग जो पिलग्रिमेज सेंटर्स है, उस सेंटर्स में अम्यूनिटीज, टूरिस्ट अम्यूनिटीज बढ़ाने के लिए भारत सरकार लगातार पैसे खर्च कर रहे हैं। और जो आप प्रपोज दिया है, जरूर स्टेट गवर्नमेंट से अगर प्रपोजल है तो जरूर हम फाइनेंस देने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जो डोमेस्टिक टूरिज्म अगर कंपेरेटिवली 2021 से कंपेयर किए तो लगभग 155% 2022 में टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ गई। लगभग 173 करोड़ विजिट्स डोमेस्टिक टूरिज्म के आज लोग घुमाए। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, फॉरेन टूरिस्ट भी 2022 में 85 लाख का आज कंप्लीट किया है महीने में। और एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में भी 11 महीने में 2023 में, इस महीने में जब लगभग नवंबर तक 2 करोड़, एक ही जम्मू कश्मीर का ही 2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट किया है। इतिहास में आजाद के बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतने टूरिस्ट कभी नहीं आया। अब आर्टिकल 370 के हटाने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर स्टार्ट किया है। अभी उसके कारण 2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में हैं। भारत सरकार हर विषय पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए सबसे भारत का एम्बेसडर
दूसरा कोई नहीं, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, भारत का एम्बेसडर टूरिज्म बढ़ाने के लिए। जो भी देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, हर मीटिंग में टूरिज्म के बात करते हुए जरूर लोगों को भारत का टूरिज्म का इंपॉर्टेंस अवगत करते हैं। G20 का आपको मालूम है, G20 का लगभग 200 मीटिंग 56 सिटीज में हुआ है। उस जगह अलग अलग देशों का ऑर्डिनरी डेलीगेट्स नहीं है, उस देश का इंपॉर्टेंट ऑफिशियल हो और मिनिस्ट्री हो, ऑल इंपॉर्टेंट क्रीम ऑफ द 20 कंट्रीज हो, 30 कंट्रीज का ऑफिसर्स आए थे। उसको इतना प्रयास किया भारत सरकार टूरिज्म बढ़ाने के लिए। G20 के कारण सबसे बड़ा कोई फायदा हुआ तो भारत सरकार के द्वारा टूरिज्म भी एक सेक्टर है, उसका बहुत फायदा हुआ है। वो दुनिया भर में जाकर घर अपना एम्बेसडर बनकर अपना अपने देश में भारत के टूरिज्म के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में अपना अपने देश में प्रयास करे। ये भारत का बहुत बड़ा उपलब्धि टूरिज्म सेक्टर का है। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्री संतोष कुमार पी। Chairman sir, it's a universal truth that the state of Kerala is one of the outstanding destinations of tourism in the world. But unfortunately, large areas of Kerala is still unexplored. So I would like to ask the minister, there are huge possibilities of pilgrimage tourism as well. So will there be any initiative from the side of the central government to promote tourism in Kerala by investing more funds, by starting more hotels through ITC, through this tourism promotion, and by increasing the air connectivity to Kerala, especially the northern side of Kerala, including Kannur Airport. So will there be any initiative to promote tourism through these channels? Honorable Minister. सरकार के तरफ से कोई नया होटल हम नहीं खोलेंगे। हम होटल बिजनेस करने वाले नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आने वाले दिन में अलग जगह स्टार होटल हो, बजट होटल हो, सभी जगह हम होटल बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करें। स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे और लैंड दे, उसके साथ साथ जो इनिशिएटिव्स करना है स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके हर जगह इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट जोन में भी अलग अलग जगह, नॉर्थ ईस्ट में अच्छे होटल नहीं थे, ऑल अभी 8 स्टेटों में होटल्स खोलने का प्रयास किया है। केरला में भी बहुत बड़ा होटल जो 3 स्टार होटल हो, 5 स्टार होटल हो, अलग अलग जगह नॉर्थ ईस्ट में भी है। मैं बताना चाहता हूं नॉर्थ ईस्ट में पिलग्रिम्स के दृष्टिकोण से, गुरुवायूर टेम्पल के दृष्टिकोण पे हम लगभग 45 करोड़ उधर इंफ्रास्ट्रक्चर के केरला में दिया है। केरला में इको टूरिज्म हो, स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, अलग अलग जगह हम क्रूज टूरिज्म हो, बहुत जगह हम पैसे दिया है। मैं आपको डिटेल बहुत बड़ा लिस्ट है मेरे पास केरला का, जो हम पैसे भारत सरकार के द्वारा दिया गया। मैं आपको इस लिस्ट को मैं आपको पहुंचाता हूं। श्रीमती वंदना चौहान। प्रश्न संख्या 49 श्रीमती वंदना चौहान। क क्या सरकार को पिछले 2 दशकों में पश्चिमी घाटों पर भूक्षरण दोगुना हो जाने के संबंध में IIT बंबई द्वारा किए गए हालिया अध्ययन के बारे में जानकारी है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ख क्या सरकार पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए कोई पहल कर रही है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? और ग क्या सरकार की पश्चिमी घाटों के आधिकारिक आकलन या व्यापक अध्ययन कराने की कोई योजना है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती वंदना चौहान। Chairman sir, the minister has given a comprehensive reply to my question, and it is heartening to know that the ministry is cognizant of a very disheartening fact or a finding of the IIT Mumbai that suggests that there is a rapid increase in soil erosion in the Western Ghats. This report has said that their study is based on remote sensing data. And they have in the report itself incorporated, and the reply, the ministry has acknowledged this, that this data might have some methodological shortcomings, and they have expressed that the said findings need to be validated based on physical observations. So I think the physical observations need to be done by the government, and therefore, considering the fact
that there have been several landslides in the state of Maharashtra, in Kerala. I don't know about the other states, but very much in Maharashtra, where villages have absolutely been buried under the debris and soil. Would the minister consider that this needs to be taken up with right earnest and validation of this report needs to be done? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न उठाया है वो उसका कंसर्न है, क्योंकि वेस्टर्न घाट भारत के इकोलॉजी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है और लगभग 16,000 स्क्वायर किलोमीटर फैले हुए क्षेत्र में देश की 4,000 से ज़्यादा हमारी प्लांट वैरायटीज़ हैं, जो लगभग कंट्री का 27% है। उसके अलावा ट्रीज़ की भी और बाकी स्पीशीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। वेस्टर्न घाट में जो सॉइल इरोजन हो रहे हैं, सॉइल इरोजन के जो कारण हैं वो निश्चित रूप से लैंड यूज़ एक बहुत बड़ा कारण है, माइनिंग एक बड़ा कारण है, उसके साथ हमारे जो वाटर रिसोर्सेज और बाकी जो अन्य एक्टिविटी है उसके कारण लगातार भूमि का क्षरण हो रहा है। मंत्रालय द्वारा इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, फॉरेस्टेशन से लेकर के इको सेंसिटिव एरिया के प्रोटेक्शन को लेकर के चला रहे हैं। हम ये जानते हैं कि लगातार पेड़ों के कटने के कारण भूमि का लगातार क्षरण होता है और वेस्टर्न घाट में उसको प्रिजर्व करना, बचाना बहुत आवश्यक है। अभी हाल ही में COP28 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ग्रीन फंड इनिशिएटिव किया है और इसके अंतर्गत भारत में हमने उन क्षेत्रों की पहचान करी है जहां इस तरीके से सघन वन के इलाके जहां पर भूमि को लगातार फ्रेगमेंटेशन हो रही है, खाली हो रही है या पेड़ नहीं है, वहां पर ग्रीन इनिशिएटिव के द्वारा ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग वृक्षारोपण को करके एक जन भागीदारी को और सबको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी को बचाना ये महत्वपूर्ण है और इकोलॉजी के लिए वहाँ का जो बाकी भी जो एरिया है, विशेष रूप से जो वाइल्ड लाइफ एरिया है, उसको सरकार बचाने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। Second supplementary, Srimati Vandana Chauhan. Sir, the minister has rightly said that it is a very, very important eco-sensitive zone which needs to be preserved for several reasons: biodiversity, the hydrology, the geography, the monsoons that we get, and therefore it's very important that we pay attention. And therefore, rightly, the government from time to time set up two committees. One was in 2010, which was headed by Professor Madhav Gadgil. And later, there were some problems, and therefore, to give a holistic view to this issue, another committee was set up in 2012, headed by Dr. K. Kasturi Rangan. So both these committees have made recommendations, and after that, from time to time, from 2014, we have been the government has been coming up with only draft notification for the reservation of an eco-sensitive zone. Now, this is the 5th time that a draft notification has been taken. Your supplementary. So when does this see the light of the day? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को इशू किया गया था। चूँकि इसमें गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला कुल मिलाकर 6 राज्य इसके अंतर्गत, उनकी भूमि इसके अंतर्गत आती है। पिछले वर्ष भी सभी राज्य सरकारों के साथ 1-to-1 मैंने स्वयं जाकर के मंत्रियों के साथ बातचीत करी थी। हमें बहुत सारे राज्यों के सांसदों के भी विशेष आवेदन आए थे, केरल के भी सांसदों के आए थे और उसके लिए हमने जो फॉर्मर डीजी हैं संजय कुमार जी, उनके नेतृत्व में एक और कमेटी बनाई है ताकि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बाद जिन गांव की ग्राउंड लेवल पे समस्या उनको अच्छी तरीके से एड्रेस किया जा सके। मैं मानता हूं कि वो कमेटी संतोषजनक तरीके से काम कर रही है और हमें भी उस कमेटी के जो ग्राउंड लेवल पे उन्होंने असेसमेंट किया उसके निर्णय की प्रतीक्षा है। Third supplementary, Shri V. Vijay Sai Reddy. Sir, does the government plan to conduct geoscientific mapping in respect of Western Ghats? And afforestation and plantation programs of the Forest Department have had a limited success due to reasons like neglect of local ecosystem, lack of assessment mechanism, and lack of planning. How is the ministry going to deal with the same and prevent the soil erosion, sir? Thank you. Honorable Minister.
माननीय सभापति महोदय, जहां तक फॉरेस्ट सर्वे की बात है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर नियमित रूप से हमारा फॉरेस्ट सर्वे होता है। अभी पिछले वर्ष ही भारत के फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट आई है और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लगातार इसको करता है। हर 2 वर्ष बाद साइंटिफिक तरीके से सर्वे किया जाता है और उसकी रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। तो कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में एक बहुत एस्टेब्लिश हमारा डिपार्टमेंट है जो इसका नियमित रूप से संज्ञान लेके वार्षिक सर्वे करके उसको हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। Fourth supplementary, Dr. Shantanu Sen. Thank you for giving me the scope. Sir, as we know that the tigers are going to be gradually extinct and sometimes they are coming out of the forest because of severe deforestation at different parts of the country. Through you, my humble submission and my question to our learned minister, whether our government is going to take any special step to prevent this severe deforestation across the country. Thank you very much. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा कि टाइगर एक्सटिंक्ट नहीं हो रहे, बल्कि 50 ईयर ऑफ टाइगर की जो रिपोर्ट आई है, भारत में टाइगर की संख्या बढ़ी है और दुनिया के 70% टाइगर हमारे पास है। दूसरा, पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने 53 टाइगर रिजर्व इस समय पूरे देश में है। उसके साथ ही एलिफेंट रिजर्व भी 33 है। भारत वाइल्ड लाइफ के प्रति कितना जागरूक है, इसको लेकर जब 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने बिग कैट अलायंस बनाया है। बिग कैट अलायंस में जो 7 बड़े जानवर है उसमें से 5 भारत में ही हैं। भारत ने बल्कि चीता रीइंट्रोडक्शन करके जो प्रजाति हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए उसको भी वापस लाने का काम किया है। हमारे फॉरेस्ट के लोग उसके लिए भी लग रहे हैं और इसलिए भारत टाइगर कंजर्वेशन के मामले में, एलिफेंट कंजर्वेशन के मामले में दुनिया में गौरव के साथ कह सकता है कि भारत ने बचाने का और संरक्षण करने का कार्य किया है। Fifth supplementary, Dr. V. Shivadasan. The single-use plastic waste, plastic is polluting the soil and environment. Sir, government is issuing a lot of directions to protect the soil and environment to avoid the plastic waste. But the question is, sir, inspire the people. So government should follow the directions very positively. So my question is whether government is ready to follow the green protocol for the government functions like parliamentary committees and official functions of the government to avoid this single-use plastic waste. Honorable Minister. निश्चित रूप से काफ़ी जगहों पे किया जा रहा है। आजकल काफ़ी कॉन्फ्रेंस वगैरह में आप जाएंगे तो लगभग प्लास्टिक की बोतल गायब हो गई है। हमको भी सांसदों को सबको आग्रह करना चाहिए जिन कार्यक्रमों में हम भाग लें, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक ये सबसे बड़ी समस्या है, सॉइल इरोजन के लिए भी सबसे बड़ी समस्या है। सरकार ने पर्याप्त गाइडलाइन निकाली है, लेकिन इसके लिए जागृति करना हम सांसदों की भी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 50, श्री शक्ति सिंह गोहिल। प्रश्न संख्या 50। क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में रिक्तियों की संख्या और उक्त रिक्तियों को भरने के लिए अनुशंसित प्रस्तावों की संख्या कितनी है? ख उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा उक्त प्रस्तावों की अनुशंसा किए जाने के बाद कितना समय बीत चुका है? ग क्या सरकार को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों में विलंब के बारे में जानकारी है? यदि हाँ, तो विलंब के क्या कारण हैं? और घ उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी न दिए जाने के विस्तृत कारण क्या हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्री। सभा पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री शक्ति सिंह गोहिल। माननीय सभापति महोदय, ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय देर से आता है तो न्याय नहीं मिलने के बराबर होता है। और ये भी कहा जाता है कि जुडिशियल प्रोसेस इज द बिगेस्ट जुडिशियल पनिशमेंट। तारीख पे तारीख लोग परेशान होते हैं, और ये क्यों होता है? मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो टोटल स्ट्रेंथ है हाईकोर्ट के जजेस की वो 1124 है,
उसमें से 324 जगह माननीय सभापति महोदय खाली है, माने 29% से ज्यादा हाईकोर्ट में अगर जजेस खाली है तो फिर जस्टिस डिलेड ही होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एमओपी बहुत सोच समझ के 3 जजेस के जजमेंट के बाद एमओपी बना है। एमओपी के हिसाब से और हमारे संविधान के आर्टिकल 224 के हिसाब से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सरकार का रोल ही नहीं है इसमें खास। आपके वहां प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट से भेजे हुए आप क्यों रोक के रखते हो, क्यों इसको आप दबा के रखते हो और इससे इतनी जगह खाली है, तो क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप हटाना चाहती है या नहीं? ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय सभापति महोदय, ये क्वेश्चन जो है वो जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ और वैकेंसी से संबंधित है। मैं सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की स्ट्रेंथ है उनका जिक्र करता हूं। पहले 34 स्ट्रेंथ है और 34 ही भरी हुई है। 34 ही भरी हुई है। और पहले नहीं दोनों ऐसे, दोनों आप मुझे जवाब देने दीजिए। और पहले सभापति महोदय, पहले ये स्ट्रेंथ भी 31 थी। ये मोदी जी की गवर्नमेंट ने 34 की और 34 ही भरी हुई है सर सुप्रीम कोर्ट। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि 1114 ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है ये हाई कोर्ट जजेस की। मैं यूपीए की बात करूं सभापति महोदय, तो इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 9006 थी सर। इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ भी 9006 थी। हमने इनकी सैंक्शन हाई कोर्ट जजेस की भी सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाई और 1114। और अब बताता हूं कि जो हमने भरी है वैकेंसी, वो मैं आपको बता देता हूं कि अभी हम स्टॉक लें। सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। एक देखिए ऑनरेबल मिनिस्टर सभापति, वो हाई कोर्ट के जजेस। एक सेकंड या ठीक। One second. Would you kindly, would you take your seat? Would you take your seat first? Would you take your seat? Honorable member, when a member asks a question, I give full latitude. In making your inquiry, you did give a speech, raised a point, fine. I do not get into the contours whether it really fits into the frame. Honorable Minister is taking his own time, let him. Ultimately, there will be other supplementaries. Why don't you wait for that? I'm so happy that we are eliciting answers from the government. Things are going very smoothly. Why should we interrupt? And why should senior members interrupt? Let the Honorable Minister say. Honorable Minister. Thank you, sir. सर, मैं यही बता रहा था, ये यूपीए में क्या था ये सुनना नहीं चाहते, ये इनकी प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं कि अभी 1114 में से 790 वर्किंग है और 234 वैकेंट, यही मैं बता रहा था आगे। उसके बाद जो मैं आपको अगर स्टॉक लूं 1 जनवरी 23 का, तो हमें विभिन्न हाईकोर्ट कॉलेजियम से जो प्रपोजल प्राप्त हुए वो 171 और 2023 में जो हमें मिले वो 121। हमें प्रपोजल तो कॉलेजियम से ही मिलेंगे ना साहब। और अगर टोटल देखें तो ये हमारे पास प्रपोजल 292 हमारे पास पेंडिंग, उसमें से हमने अपॉइंटमेंट किया 110 का, अपॉइंटमेंट किया 110 का, सुनिए तो सही, रेमिट किया 60 का और 122 प्रोसेस में है। सर, ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का इसको आप सहयोगात्मक प्रक्रिया कह दीजिए, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और हमने आपको मैं बताना चाहता हूं कि सैंक्शन स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है जजेस की। अगर वैकेंसी हुई है तो उसको जल्दी भी भरा है। अभी 3 जज जो सुप्रीम कोर्ट के थे वो आप देखेंगे कि हमने बहुत जल्दी रिकॉर्ड समय में भर दिया है। मैं आपको एक चीज और भी कहना चाहता हूं। मैं अब चूंकि शक्ति सिंह जी हमारे सदस्य जी ने प्रश्न किया है तो एक चीज बता ही देता हूं इनको। अगर हम 2004 और 14 से बात करें, जो हाईकोर्ट जजेस की बात कर रहे हैं ये, तो
86 एवरेज अपॉइंटमेंट मेड इन एरिया 86 और हम 100 कर रहे हैं, तो हम तो ज्यादा ही कर रहे हैं सर। आप चाहो तो ईयर वाइज डेटा दे सकता हूं, ईयर वाइज डेटा दे सकता हूं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री शक्ति सिंह गोयल। सर आपका संरक्षण चाहता हूं, सवाल मेरा मिलेगा और होता है, जवाब पूरा संरक्षण मुझे मिलेगा। विश्वास है, मुझे विश्वास है। काइंडली लिसन सो दैट यू कैन, आपके जरिए सर। No, please ask your supplementary, Honorable Minister. And before that, let me tell honorable members, dealing with judiciary, a vital wing of our governance, we need to be extremely careful. Judiciary speaks through its judgments. During course of hearing, reflections emanate. They do not constitute judgment. Supreme Court has repeatedly indicated the purpose of those observations. If the honorable member has taken an observation to be judgment of the Supreme Court, I can say with my limited experience, he is totally in the wrong. A directive has been issued by me. He will comply during course of the day. Go ahead. थैंक यू चेयरमैन सर। मैं माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया सर, आपने उसका उत्तर दे दिया, लेकिन मैं नहीं देता उत्तर, आपको देना होता है। आपने स्पष्ट किया है, लेकिन संरक्षण इनका भी दिया, मेरा भी किया। संरक्षण डायरेक्शन दे दिया। संरक्षण जो है, संरक्षण आप इनका भी कर रहे हो, हमारा भी कर रहे हो, निष्पक्षता से काम करो। हमारा भी संरक्षण चाहिए ना। तो आपने अच्छा जो है अपनी बात कही, लेकिन मैं एक चाहता हूँ साहब, रनिंग कमेंट्री कुछ और होती है और डिसीजन में कुछ और होता है। अगर डिसीजन इनके पास है, माननीय सदस्य के पास, तो वो ला करके पुटअप करे। डिसीजन है तो आप रेस्पॉन्ड टू हिज क्वेश्चन। और दूसरा इनका क्वेश्चन था एमओपी को लेकर के। एमओपी को लेकर के जो प्रश्न था, एमओपी के लिए हमने 6 जनवरी 23 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा पक्ष रखा है। द मैटर इज पेंडिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड रेस्पॉन्स इज अवेटेड एमओपी के मामले में। थैंक यू। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री NR Ilango. Thank you, Chairman. There is a very strong perception among the stakeholders that the government is not clearing the names of the advocates, which are cleared by the collegium only on the basis of their political ideologies or views. I request the Honorable Minister to clarify what are the steps taken by this government to dispel such perception among the stakeholders. Thank you. Honorable Minister. Thank you, Chairman, sir. Sir, I have already stated that there is a collaborative process between the executive and judiciary. और जुडिशरी की जो निष्पक्षता है, इंडिपेंडेंसी है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये प्रोसेस में जो समय लग रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन हाई कोर्ट से नाम आते हैं, उसके बाद कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हमें कुछ सजेस्ट करता है, कुछ हम उनको सजेस्ट करते हैं। ये विषय ये प्रोसेस है, तो प्रोसेस में जो समय लगता है वो एमओपी का पार्ट जो मैंने अभी जिक्र किया। थैंक यू। श्री सस्मित पात्रा. And sir, thank you for giving me this opportunity. Firstly, sir, I'd like to commend the Honorable Minister that there are no vacancies in the Honorable Supreme Court, and also the Ministry has given information that in this year, 292 proposals have come from the High Court collegiums, and they were under process of various considerations. And it seems that at times the number of proposals expected from High Court collegiums are not as much. Now, that is not the responsibility of the Ministry. That is up to the High Court collegiums to take a call on, along with the Supreme Court collegiums, in order to fill up the vacancies. My specific question to the Honorable Minister would be, though it does not come within the domain of the Ministry to expedite something between the High Court collegiums and the Supreme Court collegium, would the Ministry consider engaging with either the process or through the Ministry with the High Court collegiums and the Supreme Court collegium? You ran out of time. Sir. You can see the Honorable Minister in his chamber. Sir. The House will meet at 2 p.m. today. अभी आप आज राज्यसभा में
प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You are listening to the recording of today's proceedings during the question hour in the Rajya Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.